आप सबका धन्यवाद आप सबको अपॉर्चुनिटी दिया आपने एंड आई ऑल द स्टूडेंट पैनलिस्ट सिद्धार्थ from Varachar, from SDPD Bank, Vittal Bhaiji from Varachar Bank, Pandey ji from Bardoli Nagrik Bank, Kamlesh ji from Varachar Bank, and Indra ji from OPL. So, as host said, the topic is how fintech and cooperative collaborate and how they can grow together. So I will मैं अपने पैनलिस्ट से कुछ इसी रिलेशन में कुछ सवाल पूछता हूँ। होप वो आपको बहुत अच्छा इंसाइट देंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी फिनटेक कोऑपरेटिव डे टू डे बिजनेस में यूज कर रहे हैं और कैसे उसका बेनिफिट पूरे इकोसिस्टम को हो रहा है। So to start with, I start first question with the Varachar Bank. सर आपने आप काफ़ी बड़ी बैंक है, आपने काफ़ी जर्नी देखी है, शायद आपने बैंक चालू किया होगा जब फिजिकल रजिस्टर होंगे, तो आपने कैसे टेक्नोलॉजी को फिनटेक्स को एडॉप्ट किया है? इम्पॉर्टेंटली कोई यूज केस बताएंगे जिसमें बैंक को कैसे बेनिफिट हुआ? उसके साथ साथ सर टेक्नोलॉजी तो सभी बैंक यूज कर रही है, तो एज ए कोऑपरेटिव बैंक आपने आइडेंटिटी कैसे कायम रखी है? बिकॉज कोऑपरेटिव इज ऑल अबाउट पर्सनल बैंकिंग, रिलेशनशिप बैंकिंग, तो टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने के बावजूद भी व्हाई यू फील दैट यू आर अ कोऑपरेटिव बैंक नॉट अ नॉर्मल बैंक एनीमोर? हाँ, आपने હું ગુજરાતીમાં કરીશ કારણ કે અમારો આખો ઓડિયન્સ બી ગુજરાતી છે એટલે એમને સમજવામાં સારી રીતે સમજી શકે એટલા માટે કે તમે જે વાત કરી કે ભાઈ કોઓપરેટિવ બેંક છે એ ટેકનોલોજી એડોપ્ટ કરી અને કેવી રીતે આગળ જઈ શકે, કેવી રીતે કામ કરી શકે। અમારી બેંકની તમે વાત કરી વરાછા, ખાસ કરીને વરાછા કોઓપરેટિવ બેંકની પણ વાત કરી કે ભાઈ તમે જે ડિજિટલ ટેકનોલોજી કોઈ એડોપ્ટ કરેલી છે અને ડિજિટલ ટેકનોલોજીમાંથી તમે કેવી રીતે આગળ વધ્યા છો એ બાબતમાં મેં મારા સવારના ઇનોવેશન લેક્ચર જ્યારે હતું ત્યારે મેં આ જ વાત કરેલી હતી કે હવે કોઓપરેટિવ સેક્ટર છે એ કોઓપરેટિવ સેક્ટર છે એ માત્ર રિલેશન બેઝ પર નથી કે પહેલા એવું હતું કે ભાઈ કોઓપરેટિવ બેંકની અંદર એમનો જે કસ્ટમર છે એ કસ્ટમર કાયમી જોડાયેલો રહેતો હતો, પણ હવે જે કસ્ટમર આવી ગયા છે, યુવા વર્ગ આવી ગયો છે, યુવા ધન જે આવી ગયું છે તે હંમેશા ટેકનોલોજી સેવિંગ અને ટેકનોલોજી બ્રિલિયન્સ છે। જો કોઓપરેટિવ બેંક એમની સાથે ટેકનોલોજીથી જો જોડાયેલી નહીં રહે તો અંતે કામને કોઈની સાથે મર્જ થવાનો, મારે દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે મર્જ થવાનો પણ વારો આવી શકે। ખાસ કરીને જેનઝેડની હું વાત કરું તો મારા પરિવારની હું વાત કરું કે મેં મારા દીકરો જ્યારે કોલેજના ફર્સ્ટ યરમાં આવ્યો અને એમને કંઈ બેંક એકાઉન્ટ ઓપન કરવાનું હતું એટલે મને એમને વાત કરી કે પપ્પા મારે એક બેંક એકાઉન્ટ ઓપન કરવાનું છે, એટલે મેં એમને વાત કરી કે ભાઈ તું મારી કાપોદ્રા બ્રાન્ચમાં જજે, ત્યાં મેનેજરને મળજે અને આટલા ડોક્યુમેન્ટ તું ત્યાં લેતો જજે અને તારું એકાઉન્ટ પછી ઓપન કરી આપશે। પાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ કે જે કંઈ નોર્મલી કેવાયસી ઓવીડી જે આપણે માંગતા હોય તે એમને લઈને જવાની વાત કરી। 4-5 દિવસ સુધી એમને મને કંઈ વાત ન કરી, એટલે એક દિવસ અમે બેઠા હતા ત્યાં મારી પાસે ચેકબુક, એટીએમ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ આ બધું લઈને મારી પાસે આવી ગયો। એટલે મેં કીધું બેટા કેમ તું આ કોટન બેંકનું ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ અમારી પાસે ટ્રાન્ઝેક્શન ફેસિલિટી છે અને લગભગ દરરોજ યુપીઆઈ એમએસ ના 2 લાખથી પણ વધારે ટ્રાન્ઝેક્શન ડેઈલી બેઝ પર થઈ રહ્યા છે અને એના માટે અમે કસ્ટમર તરફથી ચાર્જ તરીકે પણ અમને ચાર્જ પાછા મળી રહ્યા છે। તો તમે ડિજિટલ ટેકનોલોજીને ખર્ચના સ્વરૂપમાં બેંકોએ જોવાની જરૂર નથી। ડિજિટલ ટેકનોલોજી અપનાવવાની સાથે સાથે એમાંથી ઇન્કમ જનરેટ પણ આપણે કરી શકશું, કસ્ટમરને પણ આપણે સર્વાઈવ કરી શકશું, કસ્ટમરને આપણી પાસે રોકી શકશું અને સાથે સાથે તમારી કાસા ડિપોઝિટ, આજે મારી બેંકની કાસા ડિપોઝિટ મોર ધેન 55% છે।
આ ટેકનોલોજી સર્વિસ અમે જ્યારે આપી રહ્યા છીએ ત્યારે કાસા ડિપોઝિટમાં ઓટોમેટિકલી વધારો થાય છે. કસ્ટમરને ખ્યાલ છે કે ભાઈ મારે નેટ બેન્કિંગ, મોબાઈલ બેન્કિંગ, યુપીઆઈ, આઈએમપીએસ જ્યારે પણ અડધી રાતે કંઈ કરવું પડશે તો ત્યારે હું વરાછા બેંકમાંથી કરી શકીશ. તો એના મોટા ભાગનું બેલેન્સ છે કરંટ સેવિંગ્સમાં રહેવાનું છે. તો લો કોસ્ટ ડિપોઝિટ આજે બેન્કિંગના જમાનામાં ખૂબ સારી વેરીફાઈ કરવાની થઈ રહી છે. ત્યારે જો તમારી પાસે લો કોસ્ટ ડિપોઝિટ નહીં હોય તો તમારે બેંકને નેટ ઇન્ટરેસ્ટ માર્જિનમાં પ્રશ્ન થશે, પ્રોફિટમાં પ્રશ્ન થશે. આપ સાહેબ જાણતા હશો તમામ બેન્કર મિત્રો કે છેલ્લા ઘણા લાંબા સમયથી ગવર્નમેન્ટ સિક્યુરિટી માર્કેટ જે છે એ હંમેશા લો જ રહ્યું છે. ગયા વર્ષે આપણે ડેપ્રિસિએશન રિઝર્વ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં દરેક બેંકોને કરવાનું આવ્યું છે અને આવા સમયે હાયર રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટની જો તમારી પાસે ડિપોઝિટ હશે તો તમારી બેંક ક્યારેય પણ ઓપરેટિંગ પ્રોફિટમાંથી બહાર નીકળી જશે ખ્યાલ નહીં રહે. તો ટેકનોલોજીને હંમેશા મેં સવારે ઇનોવેશન સેશનમાં પણ ભારપૂર્વક સાહેબ કીધેલું હતું, અત્યારે પણ હું ભારપૂર્વક આપ સાહેબને બધાને જ કહી રહ્યો છું કે ટેકનોલોજીના માધ્યમથી બેંકને હંમેશા આપણે ગ્રો અને આગળ કેવી રીતે લઈ જવી એ નક્કી કરી શકીએ છીએ. આ જ મારું ખાસ કહેવાની વાત હતી સાહેબ. विठल सर बहुत अच्छे पॉइंट बोले इसमें. एक तो कि कस्टमर सिर्फ पुराना नहीं रह गए, बहुत नए तरीके के कस्टमर आ रहे हैं, युवा पीढ़ी आ रही है, टेक्नोलॉजी सेवी कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको रिटेन करना है, उनको अट्रैक्ट करना है बैंक की तरफ. दूसरा, टेक्नोलॉजी शायद शुरू में थोड़ी कॉस्टली पड़े बट शायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सर जैसे 3 करोड़ रुपए एटीएम से निकाल रहे हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपको कमा के देगी. तो चौथा है कि आपको कस्टमर को ईज देना है आज की डेट में, तो इसलिए टेक्नोलॉजी एडॉप्शन बहुत ज़रूरी हो गया है. थैंक यू सर फॉर इनसाइट. कमिंग टू सर पांडे सर, आपसे पूछना चाहूँगा, सर ने बोला कि युवा पीढ़ी आ रही है बट कोऑपरेटिव बैंक हमेशा से ही रूरल एरियाज़ में काम करती रही है, Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में काम किया है. तो सर ये जो बैंक्स है जो इस सेगमेंट में मौजूद है, रूरल एरियाज़ में, Tier 3, Tier 4 सेगमेंट में, तो टेक्नोलॉजी आने से, क्योंकि दूसरी प्राइवेट बैंक्स में भी टेक्नोलॉजी आ रही है, PSU बैंक्स में भी आ रही है, तो रूरल बैंक कैसे ग्रो कर पा रही है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी? आई एम ए मैन ऑफ रूरल इकोनॉमी. मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मेरा बैकग्राउंड रूरल का ही है. आई एम अ फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सुमुल डेयरी. दैट्स वाई रूरल इकोनॉमी के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ. अभी नानाणी साहब ने बहुत अच्छा बताया कि भाई बैंकिंग एंड फिनटेक वो सिम्बायोटिक इफेक्ट से चलने वाली चीज़ें हैं. पहले के ज़माने में ऐसा था कि भाई बैंकिंग फिनटेक को अपना दुश्मन समझती थी, बट राइट नाउ इट इज़ नॉट दैट. दोनों अगर सिम्बायोटिक से वे से चलेंगे तो बहुत ही फ़ायदा है. साहब की बातें बहुत मुझे अच्छी लगी. मैं रूरल का जो बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो मैं तो इस थोड़ा सीनेरियो बता रहा हूँ कि भाई अपने देश में मुझे याद है ईयर 2000 में 2000 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थी. आज 1457 हो गई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 1457 कब और कम हो जाए पता नहीं चलता. હું થોડું હવે ગુજરાતીમાં કહીશ. એટલે આવનારો સમય એવો છે કે ભલે આપણી 1457 બેન્કો છે, 12,000થી વધુ શાખાઓ આપણે ખોલીને બેઠા છે, પણ ભારત દેશની ઇકોનોમીમાં એમ કે 6% જ છે આપણું શેર. આની જે વાત કરીએ કે 6 લાખ કરોડ આપણી ડિપોઝિટ છે, 4 લાખ કરોડ આપણે એડવાન્સીસ કરીએ છીએ તમામ યુસીબી મારફતે. એટલે 10 લાખ કરોડનું આપણું દર વર્ષનું ટર્નઓવર છે યુસીબી મારફત. અને એવું જ 10 લાખ કરોડનું વિવિધ સહકારી સંસ્થાઓનું છે. એમાં અમૂલ આવી ગઈ, ઇફકો, ક્રિપ્કો બધી જ આવી ગઈ. હવે જે રૂરલ ઇન્ક્લુઝન, નાણાકીય સમાવેશન ગામડામાં કેટલું ઇફેક્ટિવ છે તેનું સૌથી સારું ઉદાહરણ હું તમને કહું, અમૂલથી મોટું કોઈ નથી. કારણ કે અમૂલે દરેક 40 લાખથી વધુ બહેનો અને પશુપાલકોના ખાતા ખોલાવ્યા છે બેંકમાં. એમને દર મહિને એમના દૂધની ગુણવત્તાના આધારે દૂધનો પગાર એમના ખાતામાં જાય છે. હવે તમે વિચાર કરો, 1 લાખ કરોડ રૂપિયા દર વર્ષે જો ગામડાઓના પશુપાલકોના ભાઈઓ બહેનોના ખાતામાં જતો હોય તો આનાથી મોટું વૈશ્વિક ઉદાહરણ કંઈ નથી રૂરલ ઇકોનોમી ઇન્ક્લુઝનનું. નાણાકીય સમાવેશન ગામડામાં કેવી રીતે થાય તે. હવે આપણે હાઈટેક થઈ રહ્યા છે પણ હાઈટેકની સાથે હાઈ ટચ
જો ગુમાવી દઈશું તો ખરેખર કશું ડિજિટલાઇઝેશન કામમાં આવવાનું નથી. મને અત્યારે જે સારો શબ્દ જાણવા મળ્યો ફાઇજિટલ, એટલે ફિઝિકલની સાથે ડિજિટલ ઓળખ આપણે ઊભી કરવી પડશે. હાઈટેકની સાથે આપણે હાઈટચ બનવું પડશે. હવે ગામડાઓના રૂરલ ઇકોનોમી ઇન્ક્લુઝનની વાત છે, તેમાં આપણે જાણીએ છીએ કે દરેક બેંક કઈ એકદમ રિમોટ એરિયામાં બેંક નથી ખોલી શકવાની, ફિઝિકલ બહુ રીચ દૂરની છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ લેક ઓફ કોલેટરલ, પહેલાં જે ગીરવે મુકાતા હતા એવા બધા પ્રશ્નો ઊભા થાય છે. પછી આપણે લિટરસી અને લેંગ્વેજનો પ્રોબ્લેમ થાય છે ને ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટીનો પ્રોબ્લેમ થાય છે. આવા સમયે જે આપણે માઇક્રો એટીએમનો કન્સેપ્ટ આવ્યો છે, આપણે જે જાણીએ છીએ ટેબ્લેટનો જે કન્સેપ્ટ આવ્યો છે, આધાર એનેબલ પેમેન્ટ સિસ્ટમનો જે કન્સેપ્ટ આવ્યો છે, તે ખરેખર બહુ વરદાન સમો છે કે ડોર બેન્કિંગ ઘર બેઠા થાય છે, પૈસા લઈ શકે છે, ડિપોઝિટ કરી શકે છે. અને જ્યાં ઇન્ટરનેટની ફેસિલિટી નથી ત્યાં પોઈન્ટ ઓફ સેલ અને એપ્સ એવી બધી ખુલી ગઈ છે ફિનટેક દ્વારા કે તેને પણ એ સગવડ મળે છે. અને જ્યારે ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી થતી ત્યારે સિન્ક્રોનાઇઝ થઈ જાય છે. એટલે આ બધી સગવડોથી આવનારો આપણો ગામડાનો વર્ગ રૂરલ બેન્કિંગથી વંચિત ન રહેશે, એ ફિનટેક એ આપણા માટે વરદાન સમૂહ છે. પણ હું વારંવાર મારા ઉદ્બોધનમાં એક વાત કરું છું કે ક્યારેક આપણે સાંભળીએ છીએ કે ભાઈ વ્હાઇટ ટાઈગર ઓછો થઈ રહ્યો છે, એશિયાટિક લાયન ઓછા થઈ રહ્યા છે, ફલાણી ચકલી જોવા નથી મળતી. પણ સારા સહકારી જીવો આપણે ગુમાવતા જઈએ છીએ, સારા સહકારી જીવો નથી મળતા, તેની કોઈ આપણે ચિંતા નથી કરતા. એટલે મારી તો લાગણી સહકારિતાથી વરેલા લોકોની છે. હાલમાં જ જે નવસારી, ડાંગ અને વલસાડ એવો જ આપણા ભારત દેશનો જંગલ વિસ્તાર, આદિવાસી વિસ્તાર, ડુંગરાળ વિસ્તાર, ત્યાંના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર વસુધરા ડેરીના ગુજરી ગયા. હું એમાં શોકાંજલિ સભામાં ગયો હતો ત્યારે મને એમ થયું કે બધાએ એમ કીધું કે આને પદ્મશ્રી આપવો જોઈએ. આ 3500 કરોડની વસુધરા ડેરી દર વર્ષે 3500 કરોડ બહેનોને આપે છે. આ એટલે કહેવાનો મતલબ કે મર્યા પછી લોકોએ એટલા બધા વખાણ કર્યા અને એટલી બધી બહેનો રડી છે, ત્યારે આપણને એમ થાય કે આવા સહકારી જીવો આપણે ગુમાવતા જઈ રહ્યા છે. તો હાઈટેકની સાથે હાઈ ટચ, આપણે હાઈ ટચ રાખીશું, ફિજિટલ રહીશું, ફિઝિકલની સાથે ડિજિટલ રહીશું અને આ માનવીય મૂલ્યોનું જો મૂલ્યાંકન કરતા રહીશું અને સંબંધોથી એ લોકો સાથે જોડાયેલા રહીશું તો રૂરલ બેન્કિંગને કોઈ વાંધો આવવાનો નથી. ભલે વરાછા બેંક 7,000 કરોડની છે, અમારી બેંક 700 કરોડની છે, તો અમને પણ વરાછા બનતા વાર નહીં લાગશે, એ હું ખાતરી આપું છું. थैंक यू. यस सर, रूरल इकोनॉमी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है. हमारा देश आज भी 50-60% रूरल इकोनॉमी से ही जुड़ा हुआ है, तो अगर उससे नहीं जुड़ेंगे तो काम आगे नहीं बढ़ेगा. मैं तीसरा क्वेश्चन कमलेश सर से पूछना चाहता हूँ, मानसा बैंक से. सर तो खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं, तो टेक्नोलॉजी अच्छे से समझते हैं. तो सर जो फिनटेक के आने से कोऑपरेटिव में जो प्रोडक्ट एनहांसमेंट हुआ है और फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो हेल्प हुई है, वो कैसे हुआ है, या आप कोई एग्जांपल देना चाहेंगे कि क्या नए प्रोडक्ट आ पाए बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी जो कोऑपरेटिव बैंक अडॉप्ट कर पाए, चाहे वो बैंकिंग की तरफ हो चाहे क्रेडिट की तरफ. પ્રશ્ન બહુ સારો છે. હું મારી એક થોડી પૂર્વ ભૂમિકા આપી દઉં. જ્યારે આમાં ઘણા બધા એવા નહીં હોય કે જેમણે લાલ કલરના મોટા 5-5 કિલોના ચોપડા ઉચકીને કામ કર્યું હોય, ત્યારથી મારી જર્ની ગઈ ફિંગરપ્રિન્ટ સુધીની મારી જર્ની છે. મારે 46 વર્ષ બેન્કિંગમાં થયા. હું પોતે સોફ્ટવેર એન્જિનિયર છું અને કોઓપરેટિવ સેક્ટરમાં છું બેન્કિંગમાં. બેન્કિંગ અને આ ફિનટેક એનો સહિયારા પ્રયાસથી તમારી બેંકોને કઈ રીતે આગળ લઈ જવાય એનો હું સુંદર ઉદાહરણ સાથે મારી ઇમ્પ્લિમેન્ટ સાથેનું રજૂઆત કરીશ. સૌથી પહેલા હું જે અભ્યુદય બેંકમાં હતો ત્યાં તો ટેકનોલોજીમાં હાઈ સ્પીડ બેંક હતી. પછી હું રિટાયર થયો પછી માણસા નાગરિક બેંકમાં જોડાયો. એ 53 વર્ષ જૂની બેંક હતી મારી, પણ ટેકનોલોજીમાં ઘણી પાછળ હતી. મારા આયા પછી મેં ટેકનોલોજીનો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઉમેરો કરતો ગયો અને અત્યારે છે ને હમણાં રિસન્ટલી મારા બેન્કિંગમાં મોબાઈલ બેન્કિંગની મારી બધી સગવડો ચાલુ કરી. એના હિસાબે મારી બેંકમાં
ઘણો બધો સુધારો થયો, અમલીકરણ થયું અને એના હિસાબે બેંકને ઘણો મોટો ફાયદો થયો. મારી બેંક 5 બ્રાન્ચ છે અને હું કેટલા માણસથી ચલાવું છું? ફક્ત 29 માણસથી. અને બીજી અગત્યની વાત કે આ સ્ટેજે મેં જ્યારે મોબાઈલ બેન્કિંગ ચાલુ કર્યું તો મારા પાસે જે ડિપોઝિટનો રેશિયો હતો એમાં મારે ઓછામાં ઓછા 35% વધારો થયો. પ્લસ આ વર્ષે આ ઈરાન વિરુદ્ધ અને એના કારણે ઘણી બધી બેંકોને ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીના રોકાણોમાં હિસાબે પ્રોફિટમાં ઘણો બધો લોસ થયો. કારણ મારી બેંકે રિવર્સ કર્યું. મારી બેંકે ગઈ વર્ષ કરતા લગભગ 22% જેટલો પ્રોફિટમાં વધારો કર્યો અને એ ડ્યુ ટુ ટેકનોલોજી. ટેકનોલોજી તમારા ખર્ચાળ નથી પણ એક પ્રોફિટેબિલિટી કઈ રીતે કરવી એનું એક ગેમ રમત કરવી જોઈએ. એ ગેમ રમત બેન્કિંગ અને ટેકનોલોજી એ મિક્સ થશે તો દેશ જે 47માં સપનું છે દેશનું કે આપણે દેશ દુનિયાની સૌથી નંબર 1 ઇકોનોમી થવું, એ સપને સાકાર કરવામાં આપણો દેશ સફળ થશે. કારણ શું? કે સહકારી બેંકો ગામડાના છેવાડા સુધીની છે અને છેવાડા સુધી કોઓપરેટિવ સેક્ટર જ જઈ શકશે. અને જે ઇન્ડિયાનું કલ્ચર છે ગામડા દેશ, તો ગામડા આગળ આવશે તો જ ઇકોનોમી આગળ આવવાની, નહીં તો આવવાની નથી. તો ટેકનોલોજીથી ધી અને દૂર ભાગવાની જરૂર નથી, પણ ટેકનોલોજી આય મારા ગળે લાગ અને મારી સાથે काम करे. थैंक यू सर. तो हमने देखा एटीएम से कमा रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं और कस्टमर को रिटेन कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में टेक्नोलॉजी कैसे एनेबल कर रहे हैं. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ओपीआई मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वही हिसाब से पूछना चाहता हूँ जो सीएफओ इनोवेट किए. सर आप कैसे फिनटेक का रोल देख रहे हैं टेक्नोलॉजी साइड में? कैसे कोऑपरेटिव उनको यूज करके ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इंप्रूव कर सकता है, क्रेडिट अंडरराइटिंग इंप्रूव कर सकता है, डिपॉजिट्स इंप्रूव कर सकता है? आप क्या रोल देखें, बिकॉज आप खुद भी एक टेक पार्टनर हैं. બેન્કિંગમાં આપણે બે કોન્સેપ્ટ લાવીએ છીએ કે જે કાંઈ આપણે પ્રોસેસ કરીએ અથવા જે કાંઈ આપણી પદ્ધતિ હોય ઋણ દેવાની, એની વિશ્વસનીયતા કેટલી, એટલે એના પર ભરોસો કરી શકીએ એવી સ્થિતિ, એવા નિયમો કે એવી સિસ્ટમ આપણે બનાવી શકીએ. એક તો એ, બીજું સ્પીડ ને કન્વિનિયન્સ. આ બંનેમાં ડિજિટાઇઝેશન છે એ ખૂબ જ ડીપ લેવલે હેલ્પ કરે છે. હું બેન્કિંગના ઓલા ઉપર જાઉં, એના ઇકોનોમીના ઓવરઓલ 2 દાખલા આપું સાહેબ. કે આજથી 25 કે 30 વર્ષ પહેલાં જે મારી ઉંમરના છે માણસો, આપણે યાદ કરીએ કે રેલવે ટિકિટ આપણે કઈ રીતે બુક કરતા અને આજે આપણે રેલવેની જર્ની કેટલી કન્વિનિયન્ટલી કરીએ છીએ. પ્રાઇસ, આજ યુએસ કોલ કરવાના આજથી 25 કે 30 વર્ષ પહેલાં આપણે કોલના કોસ્ટ શું હતી અને આજે આપણે વોટ્સએપ ઉપર કોલ દુનિયામાં ગમે ત્યાં કરી શકીએ છીએ. દેટ ઇઝ ટેક. એના નેગેટિવ બિલકુલ યુપીઆઈનું જે ડિજિટાઇઝેશન થયા પછી સિક્યોરિટીના કન્સર્ન 100%. બેન્ક્સના એંગલથી જ્યારે સવારના સેશનમાં અમુક મિત્રોએ કીધું કે વેન્ડર્સ આર એ ઇશ્યુ ફોર અસ. એક્ઝેક્ટલી જે રીતે આપણે સારા મિત્રો પસંદ કરવા એ જીવનમાં જરૂરી છે, વેન્ડર બી આપણે જોઈ ચકાસીને જ લેવા પડે. એટલે એની વિશ્વસનીયતા, એની રિલાયબિલિટી, સ્પીડ એ દરેક એઝ એ બેંક આપણે રિસ્પોન્સિબલી પિક કરવા પડે. દેટ ઇઝ એ બેંકોની જવાબદારી છે. એમાં ફિનટેક તરફથી હું એટલું જ કહી શકું કે અમે જે પ્લેટફોર્મ ડિલિવર કરીએ છીએ સાહેબ, આજે એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું તો કોઈ પણ બેંક લોન લેતી વખતે એના જે કરંટ એકાઉન્ટના કે સ્ટેટમેન્ટ માંગતી જ હશે, આપ પણ લેતા જશો ચકાસણી માટે. એ સારી સંસ્થાઓ સાહેબ, આપણે ઇન્ડિયામાં જે મોટામાં મોટી ફિનટેક છે એના બી અમે જોયા છે કે એક્યુરેસી લેવલમાં ક્યાંક 2-3% છૂટી જાય છે. આજે અમે એઆઈ યુઝ કરીને
એને ટિપિકલી નિયર ઝીરો ફેક સ્ટેટમેન્ટ કોઈ એઆઈથી બનાવીને લાવ્યા હોય તો કાઉન્ટરેક્ટ કરીને પણ કેપ્ચર કરી લે છે કે ધીસ ઇઝ નોટ કરેક્ટ. એનાલિટિક્સ એટલા ડીપ જાય છે કે આપણે ફક્ત સ્ટેટમેન્ટ ઉપરથી માનો કે છેલ્લા જે 3 મહિનામાં અમને 1-2 બેંકોના જે ફીડબેક મળ્યા હતા વોઝ સો એક્યુરેટ કે કોઈ પણ ડેટર વધારે મિડલ ઇસ્ટમાં જ્યાં હોય તો તરત જ ફ્લેગ થતું હતું કે આ પોટેન્શિયલ રિસ્ક હોઈ શકે બેંક માટે. 10%થી વધારે એક્સપોઝર છે, 15%થી વધારે એક્સપોઝર છે, એવી સ્થિતિ હોય તો ઇટ વોઝ ફ્લેગિંગ. આ ડિજિટાઇઝેશનના આપણને રિસ્કને સારી રીતે વ્યવસ્થિત રીતે મૂકવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ થાય છે. સ્પીડ એક્યુરેસી ડેફિનેટલી મેન્યુઅલ અથવા જ્યાં આપણે એમ કહીએ કે બ્રાન્ચ તરફથી એલઓએસ કે એલએમએસથી કરતા હતા એથી વધારે ડીપર લેવલ જાય છે. આજે જે અમારી મોસ્ટ સક્સેસફુલ પ્રોડક્ટ છે આપણી મોટી બેંકમાં અમે ડિપ્લોય કરી છે આજથી 1.5-2 વર્ષથી એ પ્રોડક્ટ છે. જ્યાં આજે માનો કે મેન્યુઅલ પ્રોસેસ હતી ત્યારે 20 દિવસ 25 દિવસ મહિના ફાઇલને ક્લિયર થવામાં બહુ નોર્મલ હતું. આજે સેમ પ્રોસેસ અમારા પ્લેટફોર્મ ઉપર 25 મિનિટથી 30 મિનિટમાં સિસ્ટમની જર્ની પૂરી થઈ જાય છે. અને એની જે અમારી એસટીપી જર્ની છે એમએસએમઈ લોન 5 કરોડ સુધી, એમાં બ્રાન્ચ મેનેજરને જે દિવસે લોન એના પેજ ઉપર લેન્ડ થાય જે સમયે ત્યાં સુધી એને પોતાને બી ખબર નથી હોતી કે મારી બ્રાન્ચમાં લોન એપ્રૂવ થઈ ગઈ છે. જ્યારે એકાઉન્ટ ખોલવા માટે લેન્ડ થાય અને ટોકન જનરેટ થાય ત્યારે અમારી સિસ્ટમ એ કન્વે કરે ત્યારે અથવા કસ્ટમર પોતે લઈને જાય then he knows કે મારી બ્રાન્ચ. એટલે સબ્જેક્ટિવિટી એલિમેન્ટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ગોન. રિલાયબિલિટી જેને આપણે એક મોટો ગુણ ગણીએ છીએ ક્રેડિટ ડિલિવરીમાં ઇઝ એન્શ્યોર્ડ. સ્પીડ અને મેં સ્ટેટમેન્ટનું આપણે એક્ઝામ્પલ આપ્યું એમ ઇટ ઇઝ એક્યુરેટ ટુ ધ પોઈન્ટ કે કોઈ પણ લીકેજીસ ન થાય. આ લેવલની વિશ્વસનીયતાવાળો પ્લેટફોર્મ ક્રિએટ કરી એન્ડ ઓપરેટ કરવો ઇઝ સમથિંગ. આજે અમે આપણી ગુજરાતની જ કંપની છીએ. બેંગ્લોર, હૈદરાબાદ મોટી કંપનીઓના આપણે નામ સાંભળ્યા હશે, બટ સરકારના કમ્પ્લીટલી રિલાયબલ પ્લેટફોર્મ વી ઓપરેટ ફ્રોમ ધીસ. આમાં ઇવન આપણી અર્બન કોઓપરેટિવે અત્યારે નવી સ્કીમમાં જોડાઈ છે. લોટ ઓફ યુ આર ઓલરેડી વિથ અસ. તો આઈ એમ હેપી કે અર્બન કોઓપરેટિવ સેક્ટર ઓલ્સો એટલીસ્ટ એક પ્રોડક્ટમાં અમારી સાથે સામેલ થયું તો દેટ વિલ ટેક યુ લોટ ડીપર. તમારી કસ્ટમર સર્વિસ, પર્સનલ ટચ આ આપણી સ્ટ્રેન્થ છે. એમાં ડિજિટાઇઝેશન ભળે તો નેચરલી ઇટ વિલ બી મચ મોર. એ વેલ્યુ એડિશન કોઓપરેટિવ બેંક માટે બી વધશે. આઈ ફીલ આ સિવાય સર્વિસ લેવલમાં કોઈ દિવસ અર્બન કોઓપરેટિવ્સ પાછળ પડે એવો કોઈ ચાન્સ નથી. બીજી બધી બેંકો હારે આપ સંબંધોમાં તો ખંભા મિલાવીને ઊભા રહેશો. ડિજિટાઇઝેશન જો વધારે ડીપર ને એક્યુરેટ લેવલે જાય तो आई थिंक अपना वैल्यूएशन विल बी वेरी हाई. इससे मैं सिद्धार्थ सर के पास जाऊंगा, बट सर कुछ समय मैं निकालता हूँ 2 मिनट डिजिटाइजेशन पे ही. कैसे डिजिटाइजेशन हेल्प कर सकता है. एक जस्ट बैठे बैठे मेरे दिमाग में थॉट आया, आपके पास सबके पास मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशन होगी, आपकी बैंक की अपनी मोबाइल एप्लीकेशन बैंक होगी. आप उसमें एक बैनर होस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपका शायद लोकल मारुति डीलर अपना ऐड दे दे. आप उसको बोलो ऐड हम करते हैं आपका अपना मोबाइल वेबसाइट के बैनर पे, और आप उसको ऐड का चार्ज करो. उसको भी रीजनल मार्केटिंग करनी है, आप भी रीजन में ही प्रेजेंट हो. तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो सोचे जा सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी को लिवरेज करके आप एडिशनल इनकम कमा सकते हैं. इसमें आरबीआई की कोई रेगुलेशंस नहीं, आरबीआई आपको रोकता नहीं है ऐड करने के लिए. मार्केट प्लेस पे आप उन चीज़ों को कर सकते हैं. डिजिटाइजेशन में जैसे नेजिटो भी 30 साल पुरानी कंपनी है. CBS, LOS, LMS, CTS, डेटा आर्काइवल, रेगुलर रिपोर्टिंग, ऑलमोस्ट सारे सॉल्यूशन हम लोग देते हैं. रिसेंटली हमने वीडियो KYC भी लॉन्च किया है, eKYC भी लॉन्च किया. तो आज जब मेरी 5 ब्रांचेज़ है, 10 ब्रांचेज़ है, 50 ब्रांचेज़ है, तो अगर मेरे को वो एक ब्रांच मेरी 5 किलोमीटर का एरिया कवर करती है, वो 6 किलोमीटर कस्टमर को कैटर करने के लिए क्या मुझे एक ब्रांच ओपन करनी है, या मैं उसको ऑन टू ऑन डिजिटल फैसिलिटी दे के उसको मैं डिपॉजिट गैदर कर सकूं. मैं उसको एक मोबाइल एप्लीकेशन दे देता हूं जो वो वहाँ पे बैठ के डाउनलोड कर देगा. उसका सारा KYC प्रोसेस, उसका DDU, जो एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग के चेक सारे उस एप्लीकेशन पे हो जाए, और वो अपना NEFT RTGS से पैसा ट्रांसफ़र करके वहीं से डिपॉजिट ओपन कर दे.
हो सकता है आरबीआई की कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो, किसी बैंक को ट्रांजैक्शन बैंकिंग अलाउ नहीं करती हो, बट एज अ रेगुलेटरी बॉडी अगर आप सब जाएं कि भाई इसमें ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, ये तो मैं डिपॉजिट गैदर कर रहा हूँ और आपकी नॉर्म्स फुलफिल कर रहा हूँ। वैसे ही जब क्रेडिट फाइल आती है, आज एक छोटा सेलराइड कस्टमर है या छोटा एक एसएमई कंपनी है, आपका बंदा जाता है वहाँ से 300-300 400-400 पेज इकट्ठे करके आता है। सर ईमानदारी से तो कोई भी 400 पेज नहीं पढ़ता, स्कूल में नहीं पढ़ते थे तो अभी कहाँ पढ़ेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट कौन एक्चुअली चेक करता है, उसकी कोई सैनिटी नहीं है। बट फॉर एग्जांपल आज जब हम एलओएस, हमारे एलओएस की बात करते हैं, आपको डेटा एंट्री भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पैन नंबर या आप कस्टमर का सारा CKYC डेटा, EKYC डेटा और आधार डेटा सारा एक जगह आ जाता है। आप उसमें से सेलेक्ट कर लीजिए आपको क्या सही लगता है, आप उससे OTP लीजिए। आपको बैंक स्टेटमेंट मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क बनाया है आरबीआई ने, आप सीधा अकाउंट उसकी बैंक से फैच कर लीजिए। आप उसका ITR सीधा इनकम टैक्स की वेबसाइट से फैच कर लीजिए, आप उसका GST पूरा उसकी वेबसाइट से फैच कर लीजिए। तो जब आप सारी चीज़ें गवर्नमेंट के सोर्स से फैच कर रहे हैं और वो सारा आपको एक एक्सेल शीट में या एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के फॉर्मेट में आ रहा है कि भाई ये समरी है, आदमी इतना कमाता है, ये इसका रेशियो, ये इसका डेट टू इक्विटी है, ये इसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, ये EBITDA है, और सारी समरी आ जाती है, तो मेरी फाइल प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी कम हो जाती है, मेरा फ्रॉड रिडक्शन कितना कम हो जाता है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी बहुत कुछ मदद कर सकती है, एडॉप्शन की ज़रूरत है। सो ऐसे बिजनेस भी बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी भी यूज़ होएगी। कमिंग टू सिद्धार्थ सर फ्रॉम एसबीपीबी बैंक, सर से बात हो रही थी, सर बता रहे थे कैसे 4-5 साल के अंदर बैंक को डबल साइज पे लेके चले गए। तो टेक्नोलॉजी की सभी बात कर रहे हैं सर, बट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आप सब सीनियर लोग हैं, CEO है, MD है, चेयरमैन है, आपने तो कमरे में बैठ के डिसीजन ले लिया कि हम लोग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, बट क्या आपके कस्टमर रेडी है? क्योंकि शायद कस्टमर को पता नहीं कैसे यूज करना है, कस्टमर तक शायद वो मैसेज भी नहीं पहुंच रहा होगा कि आपने ये नई चीज लॉन्च कर दी है। आपकी ब्रांच के जो लोग हैं जो काफी सालों से उस ब्रांच को संभाल रहे हैं, वो शायद टेक से भी नहीं हो, उनको टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग नहीं होगी, तो क्या वो अडॉप्ट करने के लिए रेडी है? इसकी जो कॉस्ट है, कंप्लायंस इश्यूज है, तो उन सबको सर कैसे बैलेंस करेंगे? उन सबको कैसे एक जगह पे जाके आप डिसीजन तो कर लेते हैं, बट उसके बाद कैसे आप बैलेंस कर पाते हैं? राइट सर, थैंक यू सर, आपने बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा एक्चुअली। मैं जो चालू करूँगा थोड़ा इस हिसाब से कि ऑलरेडी पैनलिस्ट ने जो रिस्पॉन्सेज दिए हैं उसी में उस चीज़ का जवाब छुपा हुआ है जो आपने मेरे से पूछा। धनाजी साहब ने जो कहा कि हमने क्वाइट पहले टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया, वी आर नाउ रिपिंग द फ्रूट्स ऑफ दैट एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। पांडे साहब ने जो कहा कि सब अर्बन रूरल एरियाज में अकाउंट्स ओपन होते हैं, डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर एंड लाइक वाइज। कमलेश शाह सर ने जो कहा कि ईयर्स एगो ही हैड बीन इन प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर ये भी ऐड किया गया कि पहले टेक्नोलॉजी क्या थी, अभी क्या टेक्नोलॉजी चल रही है। सर एवरीथिंग इज़ गुड। थोड़ा स्टेटिस्टिक पे ध्यान दे देते हैं। देश में आज लगभग 1457 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, उसमें से 850 के आसपास तो टायर 1 ही है, दूसरी 500 है टायर 2। टायर 1 और टायर 2 का मतलब उनकी डिपॉजिट सर 100 करोड़ से भी कम है, और टायर 2 मतलब उनकी डिपॉजिट 1000 करोड़ से कम है। तो सर सब नई चीज़ें आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं। बढ़िया से बढ़िया आपने सॉफ्टवेयर बनाया, बढ़िया से बढ़िया फायरवॉल बनाया, डेटा सेंटर बनाया। मैं कहता हूँ वर्ल्ड का बेस्ट आपने टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट किया, शायद पाम टॉप भी। अभी किसी को शायद नियो बैंक भी कन्वर्ट, मतलब यहाँ आके मेरे को ऐसा ही लगता है कि कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल तो होना ही नहीं चाहिए, सब नियो बैंकिंग में जीने चाहिए। द बिगेस्ट इश्यू इज सर पैसा कहाँ से आएगा, दैट्स बॉटम लाइन। सबसे बड़ा हर्डल हम वही फेस करते हैं सर। बोर्ड रूम में बैठ के चेयरमैन और वो सब तो ठीक है सर, डिसीजन लेते ही हैं। एज ए CEO मेरे पास जब भी IT से पेपर आता है, सबसे पहले सर ये चीज़ है, ये कंप्लायंस है, दिस ऑल थिंग, सबसे पहला मेरा ध्यान जाता है वो फिगर पे, कितने में पड़ेगा भाई, क्या चीज़ है। अच्छा दूसरी चीज़,
इसके बिना नहीं चल सकता क्या? दस वो सर बॉटम लाइन है, तो अल्टीमेटली इट इज ए कॉस्ट टू बैंक। और दूसरी चीज, सो मनी इज द बिगेस्ट हर्डल। दूसरी चीज, आपके यहाँ जो टेक कंपनीज हैं, सुपर एक्सपर्ट लोग आते हैं, उनको C++ जाने क्या, पाइथन और क्या कोबोल जाने, हर तरह की लैंग्वेज आती है। हमारे पास और हमारा जो मैन पावर है वो तो टिपिकल देसी लैंग्वेज में ही कोबोल या पाइथन यूज़ करता है सर, उतना टेक्निकल भी एक्सपर्ट नहीं है। तो वो एक डिस्पैरिटी जो होती है, आपने सब कह दिया टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे बेस्ट में बेस्ट सॉल्यूशंस हैं, लेकिन वो एडॉप्शन और वो रिक्वायरमेंट में एडजस्ट होना वो हमारे लिए थोड़ा अलग होता है। दूसरा, फिनटेक की अपने बात करते हैं। फिनटेक में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे होता है, वो लोग इमीडिएट डिसीजन ले सकते हैं, अपने प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं और ये सब कर सकते हैं। हमारे यहाँ स्पेसिफाइड वे ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है, ज़्यादातर चीज़ें बोर्ड में जाती हैं। अब बोर्ड में कैसा होता है सर कि they are also not that much technically expert, but they are very prudent about the वो बिहेवियरल डिसीजन लेना होता है ना, तो उसके पहले एक फ़िल्टर लगाया उन्होंने CEO के पास कि भाई क्या ज़रूरत है क्या नहीं, वो एनालाइज करके बोर्ड के सामने रखेगा। तो उस प्रॉपर प्रोसेस में थोड़ा टाइम लैग होता है। आप एक्सपर्ट का एक्सपेक्ट करते हैं, इवन रेगुलेटर भी एक्सपेक्ट करता है कि इमीडिएट डिसीजन हो जाए, लेकिन हमारी स्पेसिफाइड वे ऑफ डिसीजन मेकिंग है, तो उसमें टाइम भी लग जाता है। अब नए और एक कदम आगे बढ़ते हैं, कल्चरल डिफ़िकल्टीज़। कल्चरल डिफ़िकल्टीज़ को मैं ये इस तरह से देखता हूँ कि आप फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं, हम उतना फ्रिक्वेंटली नहीं चेंज कर सकते। मतलब मैं पर्टिकुलर XYZ CBS यूज़ कर रहा हूँ 3 साल से 4 साल से, मैं आज के दिन में भी उसमें 100 गलतियाँ निकाल सकता हूँ, बट वॉज इट द बेस्ट अवेलेबल नेक्स्ट ऑप्शन टू मी? फिर ये समझ में आता है, अरे भाई बदलने का कॉस्ट होगा, डेटा ट्रांसफ़र होगा, उसमें कुछ डेटा लॉस होगा, लेगेसी कितने आएगा, कितने कस्टमर का इश्यू हो जाएगा, उससे अच्छा इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके चलो इसको चलाते हैं, थोड़ा टाइम तो चलाते हैं, बाद में देखेंगे जब ये एक्सट्रीमली रिडंडेंट हो जाएगा। तो सर हम उस हिसाब से हैं, बैलेंस। वो कहते हैं ना कि नहीं सुपरलेटिव डिग्री में है, नहीं पॉजिटिव में है, कंपेरेटिव में चलता है हमारा काम। तो ये चीज़ है। आई वुड लाइक टू सबमिट वन वे आउट ऑल्सो, कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमको भी अडॉप्ट तो करना ही है टेक्नोलॉजी, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। हमारा कस्टमर भी एक्सपेक्ट करता है कि भाई RTGS NEFT सब बैंक के दे रही है, आप भी दो, मोबाइल बैंकिंग आप भी दो। तो हम जाते हैं फिर वो रीजनेबल कॉस्ट वाले में, शेयर्ड मॉडल में। अब शेयर्ड मॉडल अपना अलग ही प्रॉब्लम लेकर आता है। शेयर्ड मॉडल है कि जो चीज़ आप हमको भेज रहे हैं सेम सर्वर पे बहुत सारी बैंकों को दे रहे हैं। अब कोई अभी कुछ शायद 1 आध साल पहले कस्टमाइजेशन नहीं हो पाता है, हाँ, ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं हो पाता है। ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं हो पाता है, वो बात भी सही है। और सब कुछ हमारे हिसाब से चेंज करके देंगे तो फिर से वो बेसिक क्वेश्चन कॉस्ट का खड़ा हो जाएगा। तो हम जाते हैं शेयर्ड मॉडल पे। अब शेयर्ड मॉडल के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन RBI के एंड से आता है, आपकी साइबर सिक्योरिटी क्या है इसमें। दूसरा एक चीज़ होता है कि CBS का सोर्स कोड, सब कहते हैं कंप्लायंस में दे देते हैं CBS का सोर्स कोड, हमको पता है सर कोई टेक्निकल ग्लिच होगा। आई रियली फील शायद इनमें से हमारे जितनी भी बैंक हैं, एक आध बैंक में ही कोई उसको डिकोड करके कभी यूज़ किया हो, वो कोड से हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये बॉटम लाइन है CBS में। तो सर कंप्लायंस के लिए चीज़ें ठीक है, लेकिन दीज आर द रियल हर्डल्स विच वी आर फेसिंग। कॉस्ट है, कल्चर है, हमारा ट्रांजिशन है, तो these all the things, लेकिन फिर भी I do appreciate and I must submit because I have worked with a private bank also, सरकारी बैंक also, so क्या कह सकते हैं आप कि बेस्ट अवेलेबल है, बैलेंस करके हम चल रहे हैं, वो शायद ही कोई सेक्टर चल सकता होगा। बिकॉज वी आर द सेक्टर विच इज कंटेनिंग, शायद एक ही ब्रांच हो, यूनिट बैंक भी है हमारे पास, और हमारे पास टायर 4 जैसे 6 बैंक भी हैं, सारस्वत बैंक भी। So we are from that sector. So my humble, observation from this all point is that कि बैलेंस करके चलेंगे हम तो सेक्टर ग्रो हो सकेगा, and that is what the observation is. That's it from my end. थैंक यू। आई थिंक यू राइटली सेड सर कि ये सेक्टर काफ़ी रिसाइलेंट है
हम भी सिंगल बैंक ब्रांच को सर्व करते हैं, कभी कभी हम भी सोचते हैं कि कैसे सरवाइव करते हैं, और 500-600 ब्रांच वाली बैंक को भी सर्व करते हैं. सो एज अ टेक पार्टनर हमको भी बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि सिंगल बैंक से तो हम पैसा नहीं दे सकते. सो वी ऑल्सो अंडरस्टैंड, एंड एट लीस्ट मिड साइज टेक पार्टनर वी ऑल अंडरस्टैंड दैट हाउ टू चार्ज यू गाइज. कमिंग टू सर, एक आपने पॉइंट बोला कि एक ही चीज़ों पे काफ़ी लोगों को होस्ट कर देते हैं. तो आरबीआई के सर सर्टेन फ्रेमवर्क्स है जहाँ पे मल्टी टेनेंसी अलाउ करते हैं, बट डेटा सेग्रीगेशन होना चाहिए. सो दैट इज़ व्हाट आरबीआई लुक्स एट, एंड फायरवॉल सबकी अलग होनी चाहिए. दैट इज़ व्हाट आरबीआई लुक्स एट. सो एक फाइनल क्वेश्चन है सभी से, सारे पैनलिस्ट, टेस्टिंग पैनलिस्ट से मैं एक एक करके रिपीटेड वो सेम सवाल चाहूँगा टू अंडरस्टैंड देयर व्यूज़. स्पेशली टेक, आरबीआई ऑब्वियसली देर इज़ नो गोइंग बैक कि टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो कस्टमर आएगा ही नहीं आपके पास अगर आप उसको डिजिटल सर्विस नहीं दोगे. अगर आरबीआई के कंप्लायंसेस पूरे नहीं होंगे तो शायद बैंक चल ही नहीं पाएगा. तो टेक्नोलॉजी कोई भी कॉस्ट पे अडॉप्ट तो करना पड़ेगा, बट उससे जो इश्यूज भी पैदा होते हैं, टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गुड, बट देर आर लॉट ऑफ इश्यूज विच हैज़ टू बी टैकल्ड. इट्स नॉट दैट वो इशू की वजह से टेक्नोलॉजी अडॉप्शन रोकें, बट बहुत सारे इश्यूज आते हैं, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज आते हैं, डेटा रिलेटेड इश्यूज आते हैं, कंप्लाइंस रिलेटेड इश्यूज आते हैं. तो उन इश्यूज को कैसे टैकल करते हैं? तो मैं मे बी कमलेश सर से स्टार्ट करता हूँ. તમે જે પ્રશ્ન કર્યો કે આ સાયબર સિક્યોરિટી એટેક ને આ બધાથી આપણા બેન્કિંગમાં શું અસર થઈ જશે અને શું, તો મારું આ સ્ટેજે એ કહેવું છે કે જો ડર ગયા સો મર ગયા. ડરવાથી કોઈ સોલ્યુશન નથી, પણ એના પ્રિકોશન તો તમારી જોડે માહિતીનો ભંડાર હોવો જોઈએ. એ માહિતીના આધારે તમારે કયા રીતના સ્ટેપ લેવા જોઈએ. અને સાયબર એટેક જેટલું ડરાવણી ચીજ છે એટલું જો તમે પ્રિકોશન, જાગતો નર સદા સુખી આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય છે, એ પેટર્ન આપણે આ ટેકનોલોજી સાથે અપનાવીએ તો ઘણી બધી સુધારો કરી શકાય અને ટેકનોલોજી થ્રુ તમારો ગ્રોથ કરી શકાય. અને આ મારું કહેવું છે. सिद्धार्थ सर, आपका व्यू ऑन दिस? राइट सर, थैंक यू सर. रिस्क रिमूवल तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन रिस्क मिटिगेशन कम हो सकता है. और रिस्क कम करने के लिए देर आर वेज एंड मीन्स. तो पहला अपने कर सकते हैं, जो आप अपना सबसे पहले इंटरनल बैंक का टेक्निकल जो टीम है, आईटी टीम, उसको थोड़ा पॉलिश कीजिए, उसको ट्रेन कीजिए अच्छे से कि एटलीस्ट दे आर एट पार विद द सिस्टम में. मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है. एआई बेस्ड बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं. अब एआई जब आया तो एआई भी अपने साथ में कई सारे रिस्क लेकर आया है. देयर इज़ ऑलवेज अ थ्रेट टू द डेटा सिक्योरिटी. कौन सा सर्वर यूज़ हो रहा है, कहाँ अपना डेटा स्टोर हो रहा है, क्या कहाँ पे होस्टिंग हो रहा है, फायरवेल अपडेटेड है कि नहीं, आपके खुद के पीसी पैच अपडेशन रेगुलरली है कि नहीं. दूसरी चीज़, कई बार ऐसा भी देखा जाता है सर कि बोर्ड मेंबर्स जो हैं, द पीपल हु आर एक्चुअली डिसीजन मेकर्स, उसमें से कुछ एक दो जन तो टेक्निकली एक्सपर्ट होते हैं. सो इट कुड बी डन कि वो खुद वीएपीटी ऑडिटर, आईएएस ऑडिटर से 1-to-1 डिस्कशन करें, बिकॉज दे हैव मोर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्निकल इश्यूज़. इसके अलावा स्टाफ में भी देखिए आप कि कई लोग टेक्निकली थोड़ा एक्सपर्ट होंगे. वी कैन लिवरेज अपॉन दैट, उनको ट्रेन करके. तो लाइक वाइज सर. और दूसरा, कंप्लीटली एवर्जन और रिमूवल ऑफ साइबर सिक्योरिटी या आईटी रिस्क कहिए तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन वी कैन मैनेज इट बाय वेज एंड मीन्स. कई बार ऐसा भी होता है कि फ्रॉड और ये अनऑथोराइज डेटा एक्सेस और ये सब चीज़ें हो जाती हैं. तो उसके लिए इमीडिएट रिस्पांस टीम भी होना चाहिए बैंक में. जैसे अपने फर्स्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस कर रहे थे कि कितने टाइम में आपका सिस्टम अप हो जाएगा. लास्ट टू लास्ट ईयर शायद सीएज का कोई वेंडर एंड पे कोई इश्यू हुआ था और टोटल साउथ गुजरात का 2 या 3 दिन के लिए क्लियरिंग बंद रहा था. तो ऐसा केस हो जाए तो हमारे इमीडिएट रिस्पांस क्या होना चाहिए? हु आर द पीपल हु वुड बी रिस्पॉन्डिंग इमीडिएटली, चाहे रात को 12 बजे या 1 बजे. वी आर सपोज टू दूसरे दिन तो 10 बजे कस्टमर यही एक्सपेक्ट करेगा कि बैंक चालू हो जाएगा. वी नेवर नो एनीबडीज अर्जेंसी.
तो ऐसे केसेस में इमीडिएट रिस्पॉन्स टीम किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, वी विल हैव टू बी रेडी ऑल दिस थिंग्स, ये सब चीज़ें BCP में इंक्लूड हो सकती हैं. दिस इज व्हाट वी कैन वर्क अपॉन. थैंक यू सर. विठल सर, आप फेरी लार्ज बैंक है तो शायद कॉस्ट साइड पे इतने इश्यूज नहीं होते होंगे आपको, बट जो दो पैनलिस्ट ने बोला कि साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज वगैरह जो हैं, तो आप अपनी टीम को कैसे तैयार करते हैं? सबसे पहले जो हमारे HR डिपार्टमेंट है वो फ्रिक्वेंटली साइबर अवेयरनेस की ट्रेनिंग करते हैं स्टाफ के लिए, और कस्टमर के लिए भी ट्रेनिंग साइबर सिक्योरिटी, उसको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने का है, इसको किसी तरह से कोई अननोन मालवेयर मेल में कुछ आ जाता है, या तो कोई लिंक आ जाता है, या तो कोई मेल आता है, तो मेल का IP आइडेंटिफिकेशन कैसे करने का है, वो सब हमारे स्टाफ और कस्टमर के लिए ट्रेनिंग अवेयरनेस का कंटिन्यूस बेस पे उनका ट्रेनिंग सेशंस रखते हैं. दूसरा, आपने बोला कि भाई ये डिजिटल टेक्नोलॉजी रहेंगे तो उसका जोखिम भी इतना है, तो इनके सामने हमारी बैंक ने पूरी तरह के साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस पॉलिसी भी रखा है. हर बैंक के लिए ये भी जरूरी है कि भाई जितना भी आप डिजिटल टेक्नोलॉजी लेंगे तो इनके अगेंस्ट में हमारा प्रोटेक्शन क्या है. हम पूरा बिल्डिंग रखते हैं और बिल्डिंग में कोई फायर के साधन सेफ्टी नहीं रखेंगे और फायर हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए इनके अगेंस्ट में साइबर क्राइम का इंश्योरेंस आता है और साइबर सिक्योरिटी के अगेंस्ट में भी इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है. तो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी, इंश्योरेंस पॉलिसी भी हर एक बैंकों को लेना चाहिए. और दूसरा, अभी जो AI आ गया है पूरा, तो AI के माध्यम से भी हम लोग ये अपने स्टाफ, कस्टमर और डिजिटल टेक्नोलॉजी में क्या क्या अवेयरनेस रखने का है, इनके लिए भी सेशंस रखते हैं, और इस तरह से कोई बैंक को कभी नुकसान ना हो पाएगा, ऐसा प्रिकॉशंस करते हैं सब. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर साइबर इंश्योरेंस का. कितनी बैंकों ने ले रखा है यहाँ पे साइबर इंश्योरेंस? बहुत कम बैंकों ने ले रखा है. और कई बैंकों ने साइबर सिक्योरिटी या तो साइबर क्राइम दोनों पॉलिसी अलग अलग तरह की रहती है. उसमें कौन से तरह के इंसिडेंट्स बनते हैं तो हमारा रिस्क इसमें कवर कितने होते हैं वो नहीं बोलते हैं. कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के पास हम जाते हैं, हमारा भी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस भी हमको साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस दे रही है, लेकिन हम लोग उसको पूछ रहे हैं कि भाई सपोज कि बैंक की गलती नहीं है और कस्टमर की गलती से उनका कुछ लॉस हो पाएगा, तो ये साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस में कवर होगा कि नहीं होगा. स्टाफ के कोई गलती से इसमें हुआ तो हमको रिस्क कवर होगा कि नहीं होगा, तो वो भी जानना चाहिए. जब हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसका रिस्क कवरेज का पूरा क्लेरिफिकेशन भी कर लेना चाहिए. कोई बैंक करते नहीं है, और कोई भी एजेंट आते हैं या तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आती है, वो भी पूरी तरह से हमको इन्फॉर्म भी नहीं करती है कि इसमें ये रिस्क कितना कवर होगा या नहीं होगा. सर सही है आपका कहना, ये थोड़ा टेक्निकल मैटर भी है. एक्चुअली सिर्फ एक या दो पॉलिसी नहीं आती, कम से कम 8, 10, 15 तरीके से डिफरेंट पॉलिसीज आती है. जैसे कीमैन इंश्योरेंस आती है, डायरेक्टर्स की आती है, एम्प्लॉय की आती है. एज IT कंपनी सर हम खुद करीब 10 से 12 पॉलिसीज लेके चलते हैं. दो वी आर नॉट यूजिंग एनी डेटा, हम कोई कस्टमर का डेटा वगैरह, फिर भी हम लोग करीब 10 से 12 इंश्योरेंस पॉलिसी लेके चलते हैं. कुछ पॉलिसी थोड़ी एक्सपेंसिव है, बाकी मोस्ट ऑफ द पॉलिसी काफ़ी सस्ती पड़ती है. जैसे एम्प्लॉय की है सर, तो एक अलग इंश्योरेंस पॉलिसी आती है जहाँ पे आप अपने की एम्प्लॉयज को रजिस्टर कर सकते हैं. जैसे IT स्टाफ है, जो यूजर्स हैं, जो लॉगिन करते हैं, तो उनका आप सेपरेट इंश्योरेंस ले लें कि भाई कल को इसकी गलती से कुछ होता है. तो साइबर क्राइम का अलग होता है, साइबर सिक्योरिटी का अलग होता है, डेटा ब्रीच का अलग होता है. बट मे बी शायद अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक पूल बना दे इंश्योरेंस का, जिसमें कुछ सब्सिडी दे दे या जिसमें कुछ बेनिफिट दे दे. बट मेरे हिसाब से इंश्योरेंस सारी बैंकों को लेना चाहिए, स्पेशली जहाँ पे छोटी बैंकों की कैपेबिलिटी नहीं है कि बहुत ज़्यादा खर्चा करे ऑन द साइबर सिक्योरिटी इटसेल्फ.
एंड इम्पोर्टेंट बात सर, कोई भी वेंडर कितना भी आके बोल दे साइबर सिक्योरिटी को आज की डेट में कोई रोक सकता नहीं, कोई गारंटी कोई भी वेंडर देगा नहीं और हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट मूव कर रही है एआई वगैरह, तो बड़ा मुश्किल है। मनीष सर, इसमें थोड़ा सा मेरे को ऐड करनी है कि जब सीबीएस वेंडर या कोई भी ऐसे आईटी सर्विसेज रिलेटेड वेंडर अपने करते हैं, एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, तो वी नीड टू पे अटेंशन कि वो ये चीज़ें होने के बाद, जैसे साइबर अटैक हो गया, डेटा ब्रीचिंग हो गया, डेटा मेल फंक्शनिंग हो गया, तो उसमें अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ प्लस माइनस कवर है कि नहीं। यू आर वेरी मच टू, ये टोटल रिमूवल तो पॉसिबल नहीं है, बट ऑलवेज देयर इज ए मैनेजमेंट। तो कैसे उस एसएलए में उस चीज को कैसे हैंडल करने का, या फिर इंडेमनिटी क्लॉज वगैरह है क्या, और कितने टाइम में सिस्टम अप हो सकेगा एट द बेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स भी कई जगह मेंशन करते हो, दैट कुड बी बी वर्क योर ऑन। सर तो रिस्पॉन्स टाइम वगैरह तो डाला जा सकता है, Yes. बट वेंडर व्हेन इट कम्स टू इंडेमनिटी वेंडर बोलेगा आपने से साइबर कवर करेंगे, हाउ विल यू सॉफ्टवेयर। वही तो सर दोस्त का करना है, एसएलए वेंडर सिलेक्शन तो वही है। हेलो, मेरा सुझाव है, एक ટેકનોલોજી ફંડ और સાયબર સિક્યુરિટી ફંડ, આ તમારા પ્રોફિટમાંથી દર વર્ષે અમુક ટકા ફાળવવાનું વધારે છે। ठीक है, हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। इसी पे मैं व्यू पांडे सर का एक ले लेता हूँ, उसके बाद मैं ओयो सर का भी ले लेता हूँ सर। NUCFDC offers 0.48% of the cyber security insurance. More or less, I think 4 or 5 banks has been raised ahead. We have already taken that insurance. शुरू तो करते हैं सर, क्योंकि इतना बड़ा थ्रेटनिंग है तो शुरू तो करना पड़ेगा। हर बैंक में कुछ भी नया आता है साइबर रिलेटेड या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिलेटेड, तो हम लोग तो ईडीपी को ट्रांसफर कर देते। कभी कभी तो ईडीपी का बंदा आईटी है भी नहीं, तो एक सीसो भी होना चाहिए, मस्ट ट्रेनिंग होना चाहिए साइबर का, कि इसके बिना चलेगा ही नहीं। सब स्टाफ को ट्रेनिंग होना चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स टीम होनी चाहिए, क्योंकि हमारे तो ईडीपी के जो लोग हैं बेचारे सुबह में आके पहले तो वही मेल देखते हैं कि लेवल 5 का अपनी बैंक में किसी के पैसा तो नहीं आया। अभी तो और हैपन कि हमारी कैटिस सोसाइटी है उसमें लेवल 6 पे पैसा आ रहा है साइबर क्राइम की वजह से। तो ये चीज सब चीजें हैं, बहुत ही गंभीरता से हम लोगों को लेनी चाहिए और इसके बिना चलेगा नहीं। આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, પેલું ઊંટ કરે ટેકા તો માણસ કરે ટેકા। આપણે એવું કરતા રહીશું, ડિજિટલ ટેકનોલોજી અપનાવ્યા વગર છૂટકો નથી અને સાયબરની સિક્યુરિટી લીધા વગર પણ છૂટકો નથી। બંને સાથે લઈને આપણે આપણી બેંકનો વિકાસ કરીશું। कोई सर आपका क्विक व्यू इस पे, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। 40 વર્ષ બેંકમાં ગુજાર્યા થયું, અત્યારે ફિનટેકમાં છું। એક મને જે સાયબર સિક્યુરિટીમાં મેજર ઇસ્યુ લાગે છે અનુભવ ઉપરથી, એ જે કસ્ટમર એજ્યુકેશન છે। આપણે ગમે એટલું પ્રિવેન્શન કરીએ પણ આ ટ્રાફિક જેવું છે, આપણે જેટલું સાહેબ જોઈ લઈએ અહીંયા, આપણે એટલીસ્ટ ગુજરાત તો એના માટે બદનામ જ છે। કોઈ પણ ચોકમાં હોય, જો પોલીસ ન હોય અને લાઇટ ન ચાલતી હોય, લાઇટ ચાલતી હોય તો બી જે રીતે આપણો ટ્રાફિક જામ થાય છે 100% આપણો રિસ્પોન્સિબલ છે। આ જ દેશનું નાગાલેન્ડ રાજ્ય છે કે નોર્થ ઇસ્ટના રાજ્યો લઈ લે સાહેબ, વોટ્સએપમાં બધા જોતા જશો, દે આર સો ડિસિપ્લિન, ટ્રાફિક જામ નથી થતા આટલા સાંકડા રસ્તા હોવા છતાં। ધેટ ઇઝ કસ્ટમર બિહેવિયર છે। સાયબર સિક્યોરિટીમાં પણ ઇટ ઇઝ જે રીતે આપણે યુઝ કરીએ છીએ ટેકનોલોજીને, ધેટ બિહેવિયર આપણો જે એનો વ્યવહાર છે, એ પાસવર્ડો ન બદલવા, ઈમેલો ખુલ્લા મૂકવા, મલ્ટિપલ એપ્લિકેશન એક જ જગ્યાએ રાખવી, એ જે આપણો જે રીતે પર્ટિક્યુલરલી ફોનને આપણે હેન્ડલ કરીએ છીએ સાહેબ, એમાં બહુ રૂમ છે ઇમ્પ્રુવમેન્ટનો, અને એ એજ્યુકેશનથી જ આવે। ટિપિકલી આપણે દેશી ભાષામાં કહીએ તો ભણ્યા પણ ગણ્યા નહીં, કદાચ આપણને બધાને એઝ એ કન્ઝ્યુમર લાગુ પડે છે। તો એઝ એ બેંક આપણી જવાબદારી છે કે સાહેબ આપણે કસ્ટમરની અવેરનેસને, સિક્યોરિટી તરફનો બિહેવિયર જે રીતે શક્ય બને એ દરેક બેંક એમના ઇન્ટરેસ્ટમાં, અને અલ્ટિમેટલી એઝ એ બેંક કે એફઆઈ તરીકે મારા ઇન્ટરેસ્ટમાં એજ્યુકેશન લેવલ આપણે જો સિક્યોરિટી બાબતમાં અવેરનેસ વધારીએ તો આઈ થિંક ધેટ વિલ બી સિંગલ મોસ્ટ વેરી હેલ્પફુલ થઈ શકે આપણી ઇકોસિસ્ટમને।
Thank you. So, thank you all the panelists.